Hello and welcome to the channel. Class 10th ର SST ର Geography Minerals and Energy Resources ର chapter ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ. Havan comes to Guwahati with his father from a remote village. Havan ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଫସଲ ଗାଁରୁ ଆମେ କହିଦେଇପାରିବା, ମାନେ ଭିତରିଆ ଗାଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ରିମୋଟ୍ ଭିଲେଜ୍, ସେଇଠୁ ସେ ଗୁଆହାଟୀ ସହରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି. ହି ଲାଇକ୍ସ ପିପୁଲ୍ ଗେଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହାଉସ୍ ଲାଇକ୍ ଅବଜେକ୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମୁଭ୍ ଆଲଙ୍ଗ ଦ ରୋଡ଼. ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜ ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋତେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଘର ଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେଉଁଟାକି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଇଛି. ହି ଅଲସୋ ସିଜ୍ ଏ କିଚେନ୍ ଡ୍ରାଗିଂ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଉସ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଇଟ୍. ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କିଚେନ୍ ଗୁଡ଼େ ବି ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର ସେଇଠି ଲାଗିକି ଅଛି. ହି ଇଜ୍ ଆମେଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କଡ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର, why don't our houses move like the one we saw in Guwahati? ବା ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲା ଆଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା. ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମିତି ମୁଭ୍ କାହିଁକି ହେଉନି, ଆମ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ. ବା ରିପ୍ଲାଇଜ୍, these are not houses, they are buses and trains. ସେ କହିଲେ ଦେଖେ ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ଘର ନୁହଁ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ, ଏଇଟା ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା. Unlike our houses, these are not made of bricks and stones. ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଘର ଭଳିଆ ଆମ ଘର ଭଳିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ସରେ ତିଆରି ହେଇନି. Metals like iron and aluminum are used in making these. ଏଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମେଟାଲ୍ସ ଦରକାର ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଆଇରନ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି. They do not move on their own, they are driven by an engine which needs energy to work. ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମିତି ଚାଲୁନି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି କେମିତି ନା ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ତା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ଚଲାଉଛି, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା କି ଏନର୍ଜି ଦରକାର କରୁଛି ଚଲିବା ପାଇଁ ହେଲା. ତ ଏଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ we use different things in our daily life made from metal. ତେଣୁ ମେଟାଲରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ. Can you list a number of items used in your house made of metals? Where do these metals come from? ତ ତମେ କିଛି ସେମିତି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛ କି ତମ ଘରେ ଯେଉଁଟାକି ମେଟାଲ୍ସରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଏଇ ମେଟାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ତମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାଅ. You have studied that the earth crust is made up of different minerals embedded in the rocks. ତେଣୁ ପଥର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିନେରାଲ୍ସ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ, ଏସବୁ ମିଶିକି ଅର୍ଥର କ୍ରଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭୂମି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇଠୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି ଏସବୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ. Various metals are extracted from these minerals after proper refinement. ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଟାଲ୍ସ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାରରେ ବାହାରେ, ତା'ର ପ୍ରପର୍ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ମିନେରାଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେମିତି ବାହାରିଥାଏ. Minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. ତେଣୁ ମିନେରାଲ୍ସ ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ ଅଂଶ ଆମ ଜୀବନର. ସେ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ. ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିନ୍ କଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଏଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ମିନେରାଲ୍ସରୁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି. So
The railway lines and the tarmac, means paving of the roads, our implements and machinery too are made from minerals. तेणु रेलवे लाइन ठू आरंभ करिकी आम रोड उपर चलुवा से मेसीन है आम जहाँ किसी इम्प्लीमेंट्स आम जहाँ किसी टूल्स व्यवहार करुचे जहाँ भी मेसीनरी जो भी यूज करते सबकि मिनेराल्स ही तैयारी होइछि। Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and drawn on power resources driven from the earth. तेणु कार बस ट्रेन एरोप्लेन सबकि मिनेराल्स तैयारी होइछि। आ ये सब को चलैयापाई अर्थ रु आमको पावर रिसोर्स मिलूँ से मिनेराल्स। तेणु दी प्रकार रिसोर्स गोटे है मिनेराल रिसोर्स आ गोटे है पावर रिसोर्स बा एनर्जी रिसोर्स। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनेराल्स। तेणु आम एमतीक आम खाइबारे खाद्य बहुत गुड़िए प्रकार मिनेराल्स देखा मिलता है जोटा कि आम देहपाई बहुत जरूरी। In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. तेणु आम डेवलपमेंट रो सबु स्टेज रे ह्यूमन बीइंग्स मिनरल्स को यूज करी आसी तार जीवन को बंचापी डेकोरेशन पाई फेस्टिविटी पाई रिलीजियस बा सेरेमोनियल राइट्स हो ये सबुथ आम दरकार मिनरल्स बुझला। तो जेन देखिनि टूथपेस्ट कथा आम कहवा ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। तेणु टूथपेस्ट आम दांत को सफा रखी था। अब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका लाइमस्टोन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। तेणु बहुत गुड़े मिनरल्स जमीक सिलिका लाइमस्टोन एल्यूमिनियम ऑक्साइड एमती विभिन्न प्रकार फॉस्फेट मिनरल्स ये सब क्लीनिंग करिवार काम करती। फ्लोराइड कोट बाहर फ्लोराइड व्हिच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज कम्स फ्रॉम ए मिनरल कॉल्ड फ्लोराइड। तेणु फ्लोराइड मिनरल रु फ्लोराइड बाहर जोटा कि आम कैविटी को रिड्यूस करोच। कैविटी मान है दांत जो पोक लगी जाकि जो नष्ट करते ताकू से बचेला। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड व्हिच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रुटाइल इल्मेनाइट एंड एनाटेस। ये सब जिनस गुड़ाक से बाहरी थाए। तेणु से टूथपेस्टा धला देखा जाए कहीं टाइटेनियम ऑक्साइड से थाए। कोटा से कौट बाहर ना रुटाइल इल्मेनाइट आउ एनाटेस रू बाहर। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका। जदि गोटे चकचक मारुची जदि टूथपेस्ट से माइका मिसिक अच्छी। द टूथब्रश एंड द ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। तेणु जो टूथब्रश आ जो ट्यूब भितर टूथपेस्ट आसूची है तो सहीरा कौन तैयारी प्लास्टिक रे। प्लास्टिक कौटू आसला पेट्रोलियम पेट्रोलियम कौटू आसला भूमि भितर। तेणु ये भूमि रू ही सबकि आमको मिलूँ सबकि है मिनरल्स। सो फाइंड आउट व्हाट सॉरी वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। तो कौटी कौटी मिलूँ ये जिनसा आम खोजा बुझेगा। तो ड्रैग ए लिटिल डीपर एंड फाइंड आउट हाउ मेनी मिनरल्स आर यूज टू मेक ए लाइट बल्ब। गोटे लाइट बल्ब तैयारी होगापी सेमती तैयारी करने को मिनरल्स केते दरकार होची व्यवहार होची ताको मध्य लिखी। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। प्रत्येक बंची थिबा जिनस लिविंग थिंग जार जीवन अच्छी समस्त को मिनरल्स दरकार। लाइफ प्रोसेसेस कैंट अकर विदाउट मिनरल्स। तेणु जीवन प्रक्रिया जहाँ भी मनीष हो जेकोसी लिविंग थिंग हो से माने कौन छोटू जो बड़ होती मिनरल्स दरकार। बिना मिनरल्स रे ए माने बड़ हो पारे ना। सो ऑल्दो आवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट्स ओनली अबाउट 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स they are so potent and so important that without them
we would not be able to utilize the other 99.7% of food stops. तेणु 0.3 तेणु जहाँ मध्य जेहेतु आमर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट करुच्ची मात्र 0.3% आम टोटाल इनटेक न्यूट्रिएंट्स किंतु एगुड़ाक बहुत जरूरी बहुत इम्पोर्टेंट आम लाइफ तांको बिना आम बाकी जो 99.7% फुल स्टॉप रहा या आम ठीक रे यूटिलाइज करिपरिबा नाही एगुड़ाक सबू फालतू रे जीवे ताले व्हाट इज मिनरल क्वेश्चन आसीबो मिनरल ताले आम क्या कहवा कौन डेफिनेशन हो पार जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज ए होमोजेनस naturally occurring substance with a definable or definable internal structure. तेणु जियोलॉजिस्ट माने या को डिफाइन कर मिनरल को जे होमोजेनियस नेचुरली माने गोटे प्रकार थिबो हला एका प्रकार थिबो नेचुरली तयारी होतुवा सब्सटेंस थिबो जोटे कि डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर तार थिबो ताको डिफाइन करी होतु इंटरनल स्ट्रक्चर ताहले जाके ताको मिनरल को सो मिनरल्स आर फाउंड इन वेरिड फॉर्म्स इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क तेणु सबुठ हार्ड डायमंड टू आरंभ करिकी पूरा एकदम सॉफ्ट टाल्क जाए मध्य सबु किछि मिनरल्स रो तयारी होछि व्हाई आर दे सो वेरिड एगुडा के एते अलग कहीं एत भेराइटर कहीं मिलूँ से क्वेश्चन आसूँ सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट रॉक्स तुम तो आगु पत्थर विषय आगु पढ़ी सारी रॉक्स विषय रॉक रो डेफिनेशन कौन ना रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स तेणु रॉक्स कौन तैयारी मिनरल्स तेणु कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस एका प्रकार थिबा सब्सटेंसेस रो कॉम्बिनेशन को रॉक्स कहा जाए तो ये जो गोटे प्रकार सब्सटेंस थिबो या को कहा जाए मिनरल्स तामरे मिनरल्स रो कॉम्बिनेशन को रॉक कहा जाए सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मिनरल ओनली बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शंस तो केते गुडे रॉक्स जमिति कि लाइमस्टोन यदि कहवा एथिरे गोटे प्रकार मिनरल आमको देखा मिलूँ जोटा कि हूँ लाइम किंतु आहरी बहुत गुड़े सेमती रॉक अच्छे जो अलग अलग प्रकार मिनरल रही वेरिंग प्रपोर्शन कौन अधिका कौन कम ये भेराइटर आमको देखा मिलता है ऑल्दो ओवर 2000 minerals have been identified only a few are abundantly found in most of the rocks तो आमर पाखापाखि 2000 रु अधिक मिनरल्स आम पृथ्वी उपरे आइडेंटिफाई कर सारे किंतु ता भितर मात्र किछिटा आमको अब्युंडेंटली मिलूँ माने प्रचुर मात्रा रे मिलूँ बाकी सब बहुत शॉर्ट रे अछंती बहुत कम अच्छा है ए पर्टिकुलर मिनरल that will be formed from a certain combination of elements depends upon the physical and chemical conditions under which the material forms तेन गोटे पर्टिकुलर मिनरल जोटा कि तैयारी होइछि कोठो ना गोटे सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट रो कॉम्बिनेशन अछि से पुनी बहुत ही सर्टन गोटे एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन रही सेठू तैयारी होची तो ये सब जिनसा डिपेंड करछि का ऊपर ना डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन फिजिकल और केमिकल कंडीशन ऊपर डिपेंड करछि अंडर व्हिच मटेरियल फॉर्म्स तो जहाँ अंडर की मटेरियल तैयारी होता है दिस इन टर्न results in a wide range of colors hardness crystal forms luster and density that a particular mineral possesses तो यार बदल आमको कौन देखा मिलूँ रिजल्ट हूँ गोटे वाइड रेंज ऑफ कलर्स है तो बहुत गुड़े कलर आमको ये देखा मिलूँ हार्डनेस भेराइटी
कलर रे वेराइटी, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्चर, डेंसिटी सबुथिरे किसी ना किसी फरक देखा मिलूँ कहीं गोटे पर्टिकुलर मिनरल पाखे सब जिनसर अलग अलग जी जमी पजेस कर जहाँ पाखे जो प्रकार प्रॉपर्टीज रही। सो जियोलॉजिस्ट यूजेस दिस प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। तो ठीक यही प्रॉपर्टीज गुड़ा को लेकिन जियोलॉजिस्ट मिनरल्स गुड़ा को क्लासिफाई कर। तो स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। तो जियोग्राफर आउ जियोलॉजिस्ट माने या केमिति स्टडी कर विषय किसी आम जानिबा। जियोग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। तेणु जियोग्राफर्स माने केमिति या स्टडी करती मिनरल्स को ना अर्थ रो क्रस्ट हिसाब रे, अर्थ रो क्रस्ट रो ये गोटे पार्ट ताको नेकी से बेटर अंडरस्टैंडिंग लैंड फॉर्म रो करि परंती। तेणु यार जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑफ इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स। तेणु यार कोटी केते डिस्ट्रीब्यूशन रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन एगुड़ा सब ये सब जियोग्राफर मानकर इंटरेस्ट से ही थाए। किंतु गोटे जियोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। किंतु गोटे जियोलॉजिस्ट कौन करिवो तार इंटरेस्ट सदाबले थाए कोथरे ना मिनरल्स रो फॉर्मेशन केमिति अछि, तार केते एज अछि, तार फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन को भाया ये सब जिन गुड़ा सी नजर रखे। हाउएवर फॉर जनरल एंड कमर्शियल पर्पसेस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तेणु गोटे जनरल और कमर्शियल पर्पस हिसाब से मिनरल्स को आम क्लासिफाई कर दे परिबा तले जमती क्लासिफिकेशन तार करा जायछि हला। तो तापर आम देखा मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन टा देखि दियो एठी। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स रे प्रथम रहछि मिनरल्स हला 3 टाइप्स रो बुझिला। तो गोटे मेटालिक, नॉन मेटालिक, थर्ड हला एनर्जी मिनरल्स। तो फर्स्ट है मेटालिक है, मेटालिक मीन्स फेरस, नॉन फेरस आ गोटे प्रेसियस। ये पुणी तार 3टा सब डिविजन। फेरस मीन्स कंटेनिंग आयरन, जो थे आयरन कंटेंट होगी थी आयरन कंटेंट देखा मिलता है सब फेरस मिनरल्स। फॉर एग्जांपल आयरन ओर, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट एगुड़ा सब। नॉन फेरस जो थे कि आयरन ओर बा आयरन कंटेंट नथिबो, जैसे कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट एटसेट्रा। आउ गोटे रहा प्रेसियस। तो प्रेसियस रे कौन हम ना ए कौन सी माने फेरस नॉन फेरस रो किसी कथा नहीं। एटा प्रेसियस माने हला बहुत ही दामिका, कहीं ये बहुत ही कम अच्छी आमको सेते अमाउंट ये मिले नहीं। जमी गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एटा बहुत कम अमाउंट आमको मिली थाए अर्थ उपर, तेणु यार प्राइस बहुत ही अधिक। ओके, सेकेंड टाइप आसला कौन नॉन मेटालिक, जोटा कि मेटाल बिल्कुल नुह, माने ताको यूज करहबनी बारंबार, ताको मेल्ट भी करहबनी। तेणु माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रानाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन ये सब तारी अंडर आसला। आसला एनर्जी मिनरल्स लास्ट। तो एनर्जी मिनरल्स कौन हम ना जो हमको एनर्जी मिल, जमी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या आम जलैले जेकोसी प्रकार यूज करवा ये से आमको एनर्जी मिल। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट देखिए आम मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मोड ऑफ ऑकरेंस तो मिनरल्स माने को प्रकार रे आमको मिली था। व्हेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, आ मिनरल्स कौटी आमको मिले। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन accumulation of any mineral mixed with other elements। तेणु मिनरल्स गुड़ाक प्रायतः आमको देखा मिलती ओर्स रे। तो द टर्म ओर, जो ओर वर्डटा टर्मटा ये यूज करा जाए कौन डिस्क्राइब करने ना गोटे accumulation of any mineral, गोटे मिनरल
कि को प्रकार रे को अमाउंट रे आउ अदर एलिमेंट सहित मिसिकी थाए ताकू कहा जाए ओर। सो द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी, तो जो ओर मिनरल कंटेंट जो अच्छी सेटा कौन होइथिवा दरकार, मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। तो यही ओर रे से मेटालटा बा से मिनरलटा एते सफिशिएंट मात्रा रे थिबो जहाँद्वारा कि ताको एक्सट्रैक्ट करवा कमर्शियली बहुत ही वायबल होतबो, माने ठीक ठाक लगुथबो। नहले ताको एक्सट्रैक्ट करिबारे जति खर्च हमर लागि जीवो एक्चुअली तार प्राइस सेतिक न होतबा, सही प्रकार हमको यदि एक्सट्रैक्शन रो प्राइस यदि न मिलुथबो ताले सेटा कोनोसी काम को हमर नुह। So the type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which mineral ores may be mined। तेणु जो प्रकार जो टाइप रो फॉर्मेशन बा स्ट्रक्चर हमको देखा मिलता है जोटा कि आम ये पाई था फाउंड डिटरमाइंस, तो ये ही डिटरमाइन करिवो रिलेटिव इज जे को मिनरलटा ओरटा माइन करा जीवो आ कोटा करा जीवो ना। कमर्शियली हमको वायबल हवा दरकार एक्सट्रैक्शनटा तार जते आम एतरे स्पेंड करथुवा खर्च होथुवो ताटो अधिक जमते प्रॉफिट मिलुथिवो। दिस आल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो एथिरे एक्सट्रैक्शन रो कॉस्ट मध्ये ऐड हबो। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन व्हिच मिनरल्स ऑकर। तेणु ये आम कौन करवा ना यहाँ बहुत इम्पोर्टाट से जे आम बुझा दरकार जे जो मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन जो थी मिनरल्स जो अकर होटा को आमको देखा पड़ो है। तो सो मिनरल्स जनरली अकर इन दिस फॉर्म्स जो अधिका थी से ही एक्सट्रैक्ट करवाटा फायदा हम ना नहीं केवल लॉस देखे। तेणु मिनरल्स को प्रकार अकर हुए को फॉर्म रे। Number 1, in igneous and metamorphic rocks, minerals may occur in the cracks, crevices, faults or joints। जो igneous और metamorphic rocks अच्छी ये गुड़ाक मिनरल्स कौटी रहिबो ना तार जो क्रैक हो जाइथिबो कि कौटी क्रेविस थिबो फॉल्ट जॉइंट ये सब जगह गुड़ाक मेंचा मेंचा कि बहुत गुड़े प्रकार मिनरल्स रही थाए। The smaller occurrences are called veins and the larger are called lodes। तो जो छोट छोट गुड़ाक जदि थी अल्प अल्प ताल ताऊ वेन्स कह जो बहुत बहुत बड़ बड़ अमाउंट मिनरल देखा रही सेटा को लोड्स कह जाए। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और मोल्टन एंड गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू cavities towards the earth surface। तेणु बहुत गुड़े केसेस रे या देखा देइछि जे गुड़ाक सब मिनरल्स भितर था जोटि कि लिक्विड मोल्टन होगी है मेल्ट होगी लिक्विड फॉर्म रे मोल्टन फॉर्म रे ना गैसियस फॉर्म रे एमाने कौन करेंगे फोर्स करेंगे अपवर्ड ऊपर को थ्रू कैविटीज। तो कैविटी थ्रू रे जो बाट पाइले से भितर सी मैंने पशिकी बाहर को आसबे। तो तलू जो फोर्सटा पड़ो से पटे से कैविटी देकी बाहर को बाहर अर्थ सरफेस को बाहर है। तो जो अर्थ सरफेस को बाहर से मैंने कौन हो कूल एंड सॉलिडिफाए। तो से ठंडा है सॉलिड हो गले आज दे राइज। मेजर मेटालिक मिनरल्स जमती कि टिन कपर जिंक लीड एगुड़ा सब आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो ये जो मेजर मेटालिक मिनरल गुड़ा रहा टिन कपर जिंक लीड ये सब या आम यही वेन्स आउ लोड्स रु ही पाई है। सेकेंड आसला सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स रे ए नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। तेणु आमको सेठी बेड्स किंबा लेयर्स रे बहुत गुड़े मिनरल्स देखा मिले। So they have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration
इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। तेणु यही सब आमको कौन मिल ना सेडिमेंटरी रॉक्स रे नंबर ऑफ मिनरल्स बहुत गुड़े मिनरल्स मिल बेड्स किंबा लेयर्स रे। तो मैंने केमिति होइथिबे ना ये रिजल्ट होची सब कार ना डिपोजिशन रो। तेणु आसिक डिपोजिट है धीरे धीरे एक्यूमुलेट है तापर कंसंट्रेशन तार बढ़िला ये सब हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा हिसाब से सब बढ़ी चलो हॉरिजॉन्टल तारी ऊपर लेयर बाय लेयर रही। तो कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तेणु कोल आउ बहुत गुड़े प्रकार आयरन ओर आमको यही प्रकार मिली था से एमती कनसेंट्रेट हो रही था ओवर ए लॉन्ग पीरियड बहुत वर्ष धरी सेमती थाक थाक होपर लेयर बाय लेयर से पड़ी चलिए है। तो तेणु लॉन्ग पीरियड या दरकार। तेणु से लॉन्ग पीरियड एमती पड़ी पड़िका तापर पुणी बहुत हीट मिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तेणु तारी पड़ी पड़िका तलू जिते हीट आसो अर्थर कोर तो से हीट मिलला प्रेशर मिलला सेमती से कोल आउ अन्य से सब तैयारी। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंटरी मिनरल्स इनक्लूड जिप्सम पोटाश सॉल्ट सोडियम सॉल्ट। तेणु आहरी सेडिमेंटरी मिनरल्स आमको मिल जमीक जिप्सम पोटाश सॉल्ट सोडियम सॉल्ट एगुड़ा सब। So these are formed as a result of evaporation, especially in arid regions. तो यही सब गुड़ा तैयारी हम केते ना ये एभापोरेशन रिजल्ट मुझे स्पेशली एरिड रीजन रे कौन हम ना एभापोरेशन हो गला जतक सब थी वाटर से सब एभापोरेट हो तेणु तले रही कौन यही सब जिन गुड़ा रही जिप्सम पोटाश सॉल्ट सोडियम सॉल्ट एगुड़ा सब तले रहीगला मैंने एक्सट्रैक्ट करा है। नंबर 3 आसला अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तेणु आउ गोटे प्रकार जदि आम फॉर्मेशन देखा है ना मोड ऑफ फॉर्मेशन से डीकंपोजिशन रही सरफेस रॉक गुड़ाक डिकम्पोज हो चलो एंड रिमूवल ऑफ सल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो गुड़ाक सल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट गुड़ाक जोटा सल्युबल हो गला है सल्यूट हो से गुड़ा को हटई दि लिविंग ए रेसिजुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। तेणु से रही कौन लास्ट को ना रेसिजुअल मास है बड़का तक वेदर्ड मटेरियल रेसिजुअल तक रही कंटेनिंग ओर्स। तेणु से ओर्स गुड़ाक रही बॉक्साइट इज फॉर्म्ड दिस वे। ठीक यही प्रकार बॉक्साइट तैयारी होता है। ठीक है नेक्स्ट नंबर 4 आसला सर्टन मिनरल्स में अकर एज alluvial डिपोजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। तो बहुत गुड़े मिनरल्स कौन है ना alluvial डिपोजिट हिसाब से रोच कौटी सैंड गुड़ा सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स। तेणु वैली फ्लोर सैंड से रहीगला। दीज डिपोजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपोजिट्स या प्लेसर डिपोजिट्स कहगला एंड जनरली कंटेन मिनरल्स। एगुड़ा को कौन ना एगुड़ाक प्रायतः मिनरल्स कंटेन करके रखती। ए डिपोजिट्स गुड़ा को आमको प्लेसर डिपोजिट्स बोली कह जाए व्हिच आर नॉट करोडेड बाय वाटर। एगुड़ाक वाटर या बुआई नहीं कि जापरनि कि नष्ट कर गोल्ड सिल्वर टीन प्लाटिनम ये सब से इम्पोर्टेंट मिनरल्स भितर गोटे गोटे बुझे। नंबर 5 द ओशन वाटर्स कंटेन भास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। ओशन वाटर से बहुत प्रकार आमको मिनरल्स टाइप देखा मिल बट मोस्ट ऑफ these are too widely diffused to be
ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस किंतु या भितर किछिटा मोस्ट किछिटा नो मोस्ट प्रायतः वाइडली डिफ्यूज्ड किंतु एगुड़ाक एतटा भी यूज नुह जे इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एमानकर सेते नाही है। हाउएवर कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइन आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर्स तेणु एगुड़ाक ओशन वाटर सब आसूची आम जो लुण खाऊचे है तो कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम ब्रोमाइन एगुड़ाकर माने इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही कम बुझे। द ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैंगनीज नूडल्स आउ ओशन बेड कथा यदि कहवा ओशन रे बहुत मैंगनीज नूडल्स अच्छी है ताको एक्सट्राक्ट करा तेणु से गुड़ाकर इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ही कम थाए कारण से प्रबल मात्रा अच्छा बुझिपाल। सो ये है 5 टाइप्स। नेक्स्ट आम देखार अच्छी जे कौन कौन एमको देखा मिलूँ रैट होल माइनिंग कथा दिखाई। रैट होल माइनिंग कौन ना रैट होल माइनिंग डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड and their extraction is possible only after obtaining the due permission from the government। तेणु बहुत गुड़े एमती मिनरल्स अच्छी इंडिया रे जोड़ा कि नेशनलाइज हो जाइए से मानकर एक्सट्राक्शन सेते बेले ही पॉसिबल हम जिते बेले तमें गोटे परमिशन गवर्नमेंट ठू आनी। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट इंडिया रो किसी ट्राइबल एरियाज रे मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। तेणु जो लोकर जगार मिनरल्स मिलला सी तार अधिकार रे आसला गवर्नमेंट से किसी करि ना। तेणु कम्युनिटी बेस रे निज गाँव रो निज एरिया रो हिसाब से माने ताको एंजॉय करेंगे ना जेकोसी लोक इंडिविजुअल हिसाब से एंजॉय करें। इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपोजिट्स ऑफ कोल। तेणु मेघालय रे आमको बहुत प्रकार कोल डिपोजिट्स देखा मिलूँ। आयरन ओर लाइमस्टोन डोलोमाइट ये सब देखा मिलूँ। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापुंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर्स in the form of a long narrow tunnel known as rat hole mining। तेणु जो जवाई आ चेरापुंजी रे जो कोल माइनिंग होची कोयला बाहर या कौन सी बड़ बड़ मेसीन बा किसी अन्य लोक कहीं लगी ना एतरे को माने काम कर ना फैमिली मेंबर है घर लोक फैमिली मेंबर लगे केमिति ना गोटे रैट होल माइनिंग बोली कह जाउची जोटा गोटे जमीती रैट रो होल थाए ठीक से भाया ये होता है। लॉन्ग नैरो टनल गोटे होता भितर खोली खोलिका तुम चल बुझे से ही हूँ रैट होल माइनिंग ताकू कह जाए। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप्ड फोर्थविथ। तेणु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन कले से देखिले जे एथिरे बहुत ही खतरा अच्छी बहुत ही डेंजरस काम एगुड़ाक तेणु एगुड़ा को इलीगल डिक्लेयर करागला और रेकमेंड करागला जे एगुड़ा सब जिते जल्दी पार से जल्दी बंद हवा उचित बुझे। ये है रैट होल। नेक्स्ट इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेरिड मिनरल रिसोर्सेस। इंडिया बहुत ही भाग्यशाली जे या पाखे बहुत ही रिच आ वेरिड मिनरल रिसोर्स रो माने रही स्टोर बुझल ना फेयरली सेटा अधिक भी नहीं अच्छी गोटे प्रकार है चलला भाया। सो हाउएवर दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कि सेगुड़ाक सेते नहीं बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती केते को जगार अधिका तो को जगार बहुत ही कम आमको देखा मिलूँ। So broadly speaking, peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic minerals, mica and many other non-metallic minerals। तेणु जदि आम कहवा ब्रॉडली ताले पेनिनसुलर रॉक गुड़ाक पाखे कौन थाए मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल। तेणु अधिकांश कोल रिजर्व से थाए
बुझे पेनिनसुला रॉक रे मेटालिक मिनरल्स मध्य थाए माइका एंड बहुत अन्य बहुत गुड़े नॉन मेटालिक मिनरल मध्य देखा मिली थाए सेडिमेंटरी रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात एंड आसाम हैव मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपोजिट्स तेणु जो सेडिमेंटरी रॉक्स गुड़ा अच्छी वेस्टर्न आउ ईस्टर्न फ्लैंक्स रे पेनिनसुलार ता सहित गुजरात रे एवं आसाम रे एमानकर पाखरे अधिकांश मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपोजिट एमान पाखरे अच्छी राजस्थान विथ द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज़ रिजर्व्स ऑफ तेणु राजस्थान रे जो अच्छी रॉक सिस्टम पेनिनसुलार सेठी मध्य आमको बहुत गुड़े रिजर्व्स देखा मिलूँ कार ना मेनी नॉन फेरस मिनरल्स बहुत गुड़े नॉन फेरस मिनरल्स डिपोजिट से देखा मिल द वास्ट alluvial plains of North India are almost devoid of economic minerals तेणु alluvial plains अच्छी नॉर्थ इंडिया सेठी मध्य बहुत गुड़े माने इकोनॉमिक मिनरल्स सेठी मध्य आमको देखा मिलूँ दीज वेरिएशंस एग्जिस्ट largely because of the differences in the geological structure तेणु जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रोसेसेस आउ टाइम जहाँ इन्वॉल्व होची मिनरल फॉर्मेशन रे ए गुड़ाक तार डिफरेंस रे भेराइटी आणुची केवल से भेराइटी बुझे ना से जो वेरिएशनटा आसी ए मानक जो आसूची जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग प्रोसेसेस गुड़ा अलग टाइम जो इन्वॉल्व हो सी अलग ताको नहीं कि होची Let us now study the distribution of a few major minerals in India. चलो बर्तमान आम देखा स्टडी करवा जे इंडिया रे जो किछिटा मेजर मिनरल्स अच्छी तार डिस्ट्रीब्यूशन केमती कौन अच्छी आम देखा कौ जगार केते केते मिलूँ ऑलवेज रिमेंबर दैट द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ ए रिजर्व तेणु सदा मन रखिबो जे मिनरल जो कंसंट्रेशन थाए ओर रे आ जो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है माने जो प्रकार आम ताको एक्सट्रैक्ट करवा काढ़ा आ मार्केट रो केते पाखे थाए ए तीनटा जिनस सदा बेले गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करिवो इकोनॉमिक वायबिलिटी को देखा गोटे रिजर्व रो इकोनॉमिक वायबिलिटी सेते बेले आसीबो एतले तीनटा जाक फैक्टर नजर को आस thus to meet the demand a choice has to be made between a number of possible options तेणु ये डिमांड को मीट करने गोटे चॉइस गोटे नहीं कार ना बिटवीन ए नंबर ऑफ पॉसिबल बहुत गुड़े पॉसिबल ऑप्शंस भितर या चूज करा व्हेन दिस इज डन ए मिनरल डिपोजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू ए माइन जो सब जिन गुड़ाक हम मिनरल डिपोजिट्स और रिजर्व गोटे माइन रे बदली बुझेगा तो माइन्स रे बदली तेणु से माइनिंग काम आरंभ हो सबकि ठीक ठाक है से डिपोजिट बा रिजर्व तक जो कहूँ माइन बोली कह क्लियर ये प्रकार चलती नेक्स्ट को आम देखार अच्छी फेरस मिनरल्स।